हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त और अब हम चलेंगे अनदर इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है नमस्ते। ओके, तो आइए चलते हैं। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द BNE Madagascar at Bazar Bay. So when you reach here, you see this road just in front of BNE Bazar Bay going in. So that road is heading to another Indian restaurant, that is Namaste. So let's go there. I'll show you their menu card and the ambience as well. So guys, here are we now. We are at Namaste restaurant. So this is the Namaste restaurant, another Indian restaurant available in Tamatau. So you see, we were there. That is BNE Bank and the road coming straight in. It ends here. Namaste restaurant. Okay. So as you can see, the numbers also flashing. Mobile numbers are also flashing at the top. So let's see. Let's go inside and check the ambience. So this is how the ambience is. So this is the bar and this is the restaurant. You see, excellent ambience. You get here, so you can come here and enjoy your meal, lunch, dinner. They are open all the time. Only Monday they are closed. I'll show you the selfie point. You see, this is the selfie point. This is how it looks like. So let's see their menu card. We'll see their menu card. I'll show you the menu card quickly. So this is the menu at the bar available, as you can see. So the prices mentioned are in Ariyari. Very competent prices, as you can see. And then this is the another menu. We have South Indian menu, then Mumbai chaat, aloo tikki. I personally like aloo tikki very much. Yesterday only I tried from Namaste restaurant. It was very nice. Masala dosa, paneer dosa, everything is there, as you can see. Chicken samosa, aloo samosa, raj kachori, and the prices mentioned are in Ariyari. Okay, then we have pizza menu. Okay, so this is just starters. This is just starter. So guys, this is their
menu. I will swipe down now. You see, they give you all the Indian options. All the dishes are available here. You see, starting from chole bhature, mixed pakoda, and the prices mentioned are in Ariyari. Okay, so I will just swipe down now and just you go through. So when you are coming to Namaste, you will get all the Indian food available in India here. You name it and you will get it, and they will prepare according to your taste. So when you are coming to Tamatave, please don't forget to visit Namaste. Okay, so you see here we have paneer options as well, then tandoori chicken as well. This is main course, vegetarian main course, dal makhani, dal bukhara, palak, rajma masala, chole masala, everything is there. Okay guys, so don't forget to come here and enjoy the meal. The taste of this restaurant is very nice. I personally always come here and I enjoy the food prepared by their chef. And not only Indian, but they provide European menu as well. So this is European menu. Hello. Okay, this is European menu. Earlier I have shown you Indian menu. This is European menu. So you get European option as well here. These are the prices mentioned in Ariyari. Okay, so you come here and enjoy your meal. सुबह वाला तो भी अगले महीने से अभी 3 महीने का वो उसके बाद एक बार वो चलेगा अरे वो भी हाँ फिर ब्रेकफास्ट होगा So we have mocktails. हाँ And cocktail as well नहीं सब देगा फिर हम ही करेंगे for the drinks. ब्रेकफास्ट हमारे अंदर नहीं पैसे देगा ना मैं ब्रेकफास्ट का पर्सन So hello guys, we are with Namaste owner now. Hi. Hi, namaste. Namaste. So once you come in Namaste restaurant guys, I will ask some questions for you guys to the owner of the restaurant. So you will provide some special food as well, right? If it is not included in the menu. We will try to ask the chef because the chef is from India. Okay, and, nice. We will try to ask him if it's possible for him to make, and if it's possible, it's possible. If it's not, it's not. ओके वेरी नाइस. सो गाइस, आपको अगर कुछ स्पेशल खाना है तो यहाँ पे इंडियन कुक है अवेलेबल ऑलरेडी. तो ओनर बोल रहे हैं कि हम शेफ़ से पूछेंगे, अगर शेफ़ प्रिपेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको फूड यहाँ मिलेगा. मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी ईट इन इंडिया इट्स अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल हियर. सो अनदर क्वेश्चन इज़ दैट, so I heard that your restaurant is arranging some lunch and dinner for anniversaries and like this, right? We can provide, like we make only foods for these kinds of events. So you can just call us or text us on WhatsApp or Facebook or Instagram, and we can just talk about the price and what you want and what we can propose. Okay. So thank you for talking to us, and it was very nice to speak with you. And hopefully people will arrive here and enjoy the food in your restaurant. Thank you. Thank you.
So now we are moving towards the Indian masala shops. There are two Indian masala shops here. One is Little India and another is Badri. So I'll show you both the shops. Basically both the shops offers you all the grocery items. So you see here, this is the Little India masala shop. Go inside quickly. And where exactly it is situated? It's located in front of the CTB laboratories. You see over there, CTB laboratories are there. CTB laboratories is there. This is the building, and just here we have this masala shop. All kind of spices available. Little India. So let's go inside. So guys, see, this is the Little India shop. All kind of grocery items, all kind of masala, starting from your chawal, rice and wheat flour, that is atta. All kind of oils, all kind of masalas. It is available here. So if you are away from India, staying in Tamatau, you don't need to worry about the grocery items. You have this shop available here. Okay, so all kind of items you will get here. You see, Monaco biscuit, crackjack biscuit, Parle G, everything is available. Dry fruits. Paste, hair oils, everything is available. So I have already shown you the location. You just come to the CTB laboratories over there. Outside the window you can see CTB laboratories is there, and just in front of this shop is located. So we can buy any grocery item here. That's it. So guys, we are in the next shop now, the next masala shop, and it is Badri. This is that shop, Badri shop. Okay, and this is the road coming from the score, and we just came from this road from Little India masala shop. So ये एक और शॉप अवेलेबल है आपके लिए अगर आप तमाताओ में आते हैं रहते हैं और आपको कुछ इंडियन मसालाज और ग्रॉसरीज चाहिए तो इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए, इनके पास भी सब कुछ अवेलेबल है। आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, आटा, चावल, अगरबत्ती, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर। कुछ इस तरीके से इनका शॉप है। आप यहाँ आइए और कुछ मसाला वगैरह चाहिए आपको, आटा, चावल, ऑल ग्रोसरीज आइटम्स यू कैन गेट फ्रॉम हियर। तो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था मुझे। क्या आपको ह्यूमन रेजोनेंस के बारे में पता है दोस्तों? बहुत से लोग होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ह्यूमन रेजोनेंस ये रहता है मदर अर्थ का। ह्यूमन रेजोनेंस का अर्थ है पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, उसके वजह से पृथ्वी के कोर में जो वेव्स उठती है, आउटर आयनोस्फीयर जो रहता है पृथ्वी का, उसको रिफ्लेक्ट करके उन वेव्स को कहते हैं ह्यूमन रेजोनेंस। सबसे पहली बार 1952 में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था विनफ्रीड
मोटो शूमन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उनका नाम था विनफ्रीड मोटो शूमन। उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे अर्थ का जो आउटर आयनोस्फीयर है और मदर अर्थ का जो इंटरनल कोर है, द लोएस्ट पार्ट, तो जो मदर अर्थ जिस वाइब्रेशन पे रहती है वो फ्रीक्वेंसी वो रहती है अराउंड 7.83 हर्ट्ज़। सो अर्थ का शूमन रेजोनेंस है अराउंड 7.83 हर्ट्ज़। अभी फ़िलहाल जून 2023 में इसको फिर से नापा गया और पाया गया कि अर्थ का शूमन रेजोनेंस दोस्तों बढ़ रहा है। अर्थ का शूमन रेजोनेंस बढ़ रहा है और वो हो चुका है अभी समवेयर बिटवीन 9 to 11 हर्ट्ज़। ये जो शूमन रेजोनेंस है वो चेंज होते रहता है, बट ऑन एन एवरेज इसको जून 2023 में देखा गया है अराउंड 9 to 11। और पिछले 2-3 साल की बात करें तो ये कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है। तो शूमन रेजोनेंस का ह्यूमन से क्या लेना देना, आप पूछोगे ये हमको क्यों बता रहे हो? आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये शूमन रेजोनेंस डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पर। ह्यूमन बॉडी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है क्योंकि इसीलिए करता है, हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे रहती है दोस्तों। आपको पता होगा हर इंसान की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अलग रहता है। हमने देखा होगा कोई लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत एक दूसरे से जलते हैं, डरे हुए रहते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों का फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन अगर नापा जाए किसी मीटर से तो आपको देख के हैरानी होगी, उन लोगों का फ्रीक्वेंसी लो रहता है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट है, नीडर है और लोगों को मदद करते हैं और सबसे मेन बात किसी से जलते नहीं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, उन लोगों का फ्रीक्वेंसी एकदम हाई रहता है। उन लोगों को देख के ही लगता है कि हाँ इसमें कुछ बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। और जैसे मैंने कहा शूमन रेजोनेंस अर्थ का बढ़ रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे भी हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि शूमन रेजोनेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स पे होता है। हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी और आपके डीएनए, इसके ऊपर शूमन रेजोनेंस का इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे शूमन रेजोनेंस बढ़ता है वैसे वैसे आप देखना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ते जाएगा लोगों का। अब आप पूछोगे कॉन्शियसनेस ये क्या है? दोस्तों कॉन्शियसनेस हम लोग का जो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म हुआ है वो कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए हुआ है दोस्तों। एक्चुअली ये मैं बहुत डीप देर जा रहा हूँ, तो चलिए ज़्यादा डीप ना जाते हुए आपको यही बताता हूँ कि कॉन्शियसनेस, शूमन रेजोनेंस बढ़ने से कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तो अगर आपका इम्यूनिटी लो है, डीएनए डैमेज हो चुका है, तो जो शूमन रेजोनेंस बढ़ रहा है वो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शूमन रेजोनेंस का डायरेक्ट असर होता है बॉडी के वेगस नर्व के ऊपर। और वेगस नर्व जो है वो सबसे लंबी नर्व हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, जो ब्रेन से स्टार्ट होके कोलोन तक रहती है। और अगर शूमन रेजोनेंस आपका बढ़ता है तो आपके बॉडी में देखना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जाएगा बॉडी का, और आप कुछ और ही सोचोगे जो बाकी नॉर्मल पब्लिक नहीं सोच पाएगी, और किसी और ही एरा में चले जाओगे, किसी और ही मतलब रहोगे पृथ्वी पर ही,
मगर आपका सोच ऐसा हो जाएगा कि बाकियों के कंपैरिजन में आप उनसे कोरिलेट कर ही नहीं पाओगे, तो उनका जो सोच रहेगा वो आपके तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये इम्पैक्ट होता है आपके पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर अगर आपका डीएनए अपग्रेडेशन हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूमन रेजोनेंस के बारे में पढ़िए, शूमन रेजोनेंस के बारे में जानिए और देखिए कि बॉडी को अपलिफ्ट कैसे करना। जैसे मैंने कहा कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, तो इस लाइफ का पर्पज़ ही कॉन्शियसनेस बढ़ाने का है दोस्तों। ये रिलीजन जो है, ये मान लो मैंने रिलीजन को एक बॉटल में बंद कर दिया, बॉटल के अंदर रिलीजन है जो धर्म कहते हैं, और रिलीजन के बाहर मैंने एक बड़ा सा मटका रख दिया। उस मटके को मैं कहूँगा कि वो हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो किसी का कोई धर्म के प्रति स्पिरिचुअल रहता है, आदमी भगवान में मानता है या किसी नेचुरल सोर्स में मानता है, कोई जीसस को प्रे करता है, कोई गुरु नानक जी को प्रे करता है, कोई अल्लाह को प्रे करता है, कोई भगवान को प्रे करता है। सो ये सब जो है अल्टीमेटली एक ही सोर्स को जाता है और उस चीज़ को उस प्रार्थना को हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं या कहते हैं। बहुत नटशेल भाषा में बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, बट मैं नए जो छोटे दर्शक हैं और जिनको उतना समझ अभी नहीं है उनके लिए सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी वो मटका समझ लीजिए और मटके के अंदर जो बॉटल है वो धर्म समझ लीजिए, रिलीजन समझ लीजिए। अब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है इतना बड़ा, जो मटके के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, खुला आसमान, ये खुली ज़मीन, ये हो गया दोस्तों आपका कॉन्शियसनेस। मतलब सोचिए कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी चीज़ है। अगर मैं यहाँ खड़ा होके 6 लिखूँगा और आपको उल्टा करके दिखाऊँगा तो वो आपको 9 ही लगेगा, करेक्ट है। आप देख के करके देखिए, अगर मैं 6 लिखता हूँ मेरे साइड से मैंने 6 लिखा और आपको ऐसा दिखाया तो आपको 9 ही दिखेगा, करेक्ट। आप बोलोगे कि सर ये तो 9 है, आप मुझे कहोगे भैया ये 9 है, लेकिन मैंने तो 6 लिखा, लेकिन मैंने आपको दिखाया 9 और आपको लगा 9। तो आप बोलोगे कि भैया आपने तो 9 लिख दिया, लेकिन मैंने तो 6 लिखा है भाई, और आपको दिखाने के लिए मैं 9 दिखा रहा हूँ। तो मुझे आपको मैंने 6 लिखा है ये नहीं बताना है, मुझे आपको वही बताना है जो आपको दिख रहा है। तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल हो गया डाउन, क्योंकि आपने नहीं सोचा कि अरे भाई अगर मैं इस पोजीशन में जाऊँ तो ये 6 भी हो सकता है। तो ये जो ब्रॉड एस्पेक्ट है दोस्तों, ये आपको देखना है एक्चुअली। तो इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर कोई हमें समझा रहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं और आप उसको ब्लाइंडली ले ले, हाँ भाई तुम कर रहे हो क्योंकि तुम तो नॉन पर्सनैलिटी हो, तो तुम तो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं रहता दोस्तों। अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो मुझे ही पता है कि वो 6 है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 9 दिखा रहा हूँ और आप समझ भी रहे हैं कि 9 लिखा है, ठीक है। तो आपको मैं बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस डाउन होने के कारण आप पूछ नहीं रहे हैं कि ये 6 भी हो सकता है। तो ये सब खेल है दोस्तों। आप अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाइए। अभी जो शूमन रेजोनेंस पृथ्वी का बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की चेंज हो रही है, तो आप देखिए ज़रा। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सोचिए। और कोई भी कुछ भी बताता है या बोलता है, स्पेशली जो नॉन फेमस पर्सनैलिटीज़ टीवी पे आके बोलते हैं, जिन पे हम रिलाई कर लेते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो ये कर रहा होगा, और अपने डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। वैसा मत कीजिए। आप देखिए वो क्या रहा है और आप सोचिए उसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। फ़िलहाल मेरा 30 मिनट का वॉकिंग ऑन द ग्रास हो चुका है
और अब मैं जाऊंगा वापस। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और भी बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ बताना है, बट मुझे चाहिए मोटिवेशन। और मेरा मोटिवेशन यही आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखें और उसे समझें। ब्लाइंडली नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, ब्लाइंडली नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। और क्या कह रहा हूँ एटलीस्ट एक बार देखिए, खुद होके सर्च कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।